What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. I can see not many have come, but I think we will start and many will join us. And before we start, I will just read from the Bible, from the book of Psalms, Psalms 100. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before his presence with singing. Know ye that the Lord, he is God. It is he that hath made us, and not we ourselves. We are his people, and the sheep of his pasture. Enter into his gates with thanksgiving, and into his courts with praise. Be thankful unto him, and bless his name, for the Lord is good. His mercy is everlasting, and his truth endureth to all generations. So I would like to welcome each and every one of you once again for our Vespers meeting. It is so good that we all could come together again at the end of this week, which had been really very hectic for each one of us, I'm sure. And it's so nice that we could all together as a family, as a big family, worship the Lord. And before we start, I think we'll all close our eyes and we will pray. Let's pray. Our most loving Heavenly Father, we thank you for this wonderful Sabbath, the beginning of the Sabbath which you have given us. We thank you for your care and protection throughout the week, dear Lord, and thank you that we could all come together to worship you, to sing praises to your name, and to hear from your word. We thank you for everyone who could come, dear Lord, and also pray for the ones who have not yet come, that you'd gather each one of us here so that we could all worship you together. Bless this worship, dear Lord. Bless our praises, our thanksgiving, and open up our hearts and our minds so that we may be able to understand the message that is there for us. Bless each and every one of the participants who will be taking part in this meeting. May you bless them too. Thank you, Father, for hearing and answering our prayers. These few blessings I ask in Jesus' name. Amen. To continue, we will have our song service now, and so I hand over the time to Dolly Didi and David Jijak. Okay. Good morning, good evening and good morning to Dr. Rao, and good evening to everybody in India. Happy Sabbath. Thank you, Irene, for inviting us to take the song service. So, the song service, we are going to sing two songs, and one is especially for the children, and it is entitled Nanhe Munhe Bachcho Aao Chale. This used to be my a favorite song of my Nani, and every time we used to have worship at our home when Nana Nani used to come to our house from Khunti, and we used to have worship, and we used to say, what song shall we sing? She always loved us to sing Nanhe Munhe Bachcho Aao Chale. So we don't have accompaniment, but we want to play the song and also sing, and sing sing for you. Okay. Mamu can play. The name. He's put in front, बैठे हारमोनियम के साथ में बैठे. I'll be happy to play again. He'll be happy to play that. Mamu, Oh, he's sitting in front of harmonium. ओ सॉरी मामू, आप हारमोनियम बजाने वाले थे, आ जाइए. अनम्यूट करेंगे बोलो ना. हाँ मामू, आई थिंक आ जाइए हारमोनियम harmonium. से. हाँ, बहुत अच्छा लगेगा, नानी का भी अच्छा याद आएगा.
या नहीं, लेकिन डॉली दीदी वो मैच नहीं होगा सबके के साथ, मैच तो नहीं होगा, दैट इज ट्रू। Okay. तो इसलिए कोई बात नहीं, आप लोग कंटिन्यू करें। आओ चले प्यारे मसीह से हम बातें करें, नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें, मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें, नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें, बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। और कपड़ा वो देता हमें, मामा और पापा और भाई बहन, खाना और कपड़ा वो देता हमें, मामा और पापा और भाई बहन, मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें, नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें, ने बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। यीशु कभी ना लड़ा, हम भी किसी से कभी ना लड़े, छोटा प्यारा यीशु कभी ना लड़ा, हम भी किसी से कभी ना लड़े, मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें, नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें, नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। चीजें वो देता हमें, छोटा सा दिल भी हमें दे उसे, कितनी अच्छी चीजें वो देता हमें, छोटा सा दिल भी हमें दे उसे, मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें, नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें, नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें। लाता है यीशु हमें, उछलते और कूदते और गाते चले, प्यार से बुलाता है यीशु हमें, उछलते और कूदते और गाते चले, मिल के चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें, नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें, नन्हे मुन्ने बच्चों आओ चले, प्यारे मसीह से हम बातें करें, प्यारे मसीह से हम बातें करें, प्यारे मसीह से हम बातें करें। आइए हम दूसरा गाना गाएंगे जो हम चर्च हिम्नल से लिए हैं, लव एट होम। और ये बहुत ही अच्छा गाना है लव एट होम, क्योंकि हम लोग जो जीपीडी हमरोम परिवार में जो हम लोग वर्शिप कर रहे हैं, हम we want to have this love at our home burning with us, and so that we have, when we have a family worship, we will have feel love it.
There is beauty all around when there's love at home. There is joy in every sound when there's love at home. Hymn number 652. 652. Smiling fair on every side, love is always faintly glide when there's love at home. Love at home. Love at home. Time will softly, sweetly glide when there's love at home. Kindly heaven smiles above when there's love at home. All the earth is filled with love when there's love at home. Sweeter sings the brooklet high, brighter beams the ocean sky. All is one who smiles on high when there's love at home. Love at home. Love at home. Time doth softly, sweetly guide when there's love at home. Jesus, make me holy thine, then there's love at home. May thy sacrifice be mine, then there's love at home. Free from all harm and mess, when no sinful care and stress, through thy tender mercy bless, when there's love at home. Love at home. Love at home. Time doth softly, sweetly glide when there's love at home. Okay, thank you very much for joining us in these songs that reminds us of our family, of our home. Over to you, Irene. Okay, thank you, Dolly Didi and David Jija for the wonderful song service. And now it's time for the opening prayer. And opening prayer will be led by Jeremy. So let's all close our eyes for prayer. Dear Heavenly Father, we would like to thank you for the day that you had given us to see. And now, Lord, as we have entered the Sabbath hours, Lord, please keep us safe and protect us, Lord. And we would like to thank you for keeping us safe throughout the week also. And Father, now as we have gathered here to worship you and praise you, Lord, today, whatever we uh, learn today from today's message, please help us to keep it in our minds, Lord, so that we may use them in our daily lives, Father, and be with the speaker also. And we pray for all the participants who have come. Please bless them and take care of them, and be with the ones who could not join also, Lord. Please be with them and take care of them, Lord. And we also pray for all the sick ones and who are suffering, Lord, from especially from this COVID-19 disease, Father, and all other sicknesses. Please touch your hand upon them so that they may recover and they may glorify your name. And
Please be with the poor and the needy also. Please provide them with their daily needs. And Father, now we know your coming is near. Help us to prepare our hearts for it, so that when you may come to take us, we may go with you and glorify thy name. Forgive all the sins and mistakes that were made. Help us not to repeat them, Lord. This short prayer in Jesus' name. Amen. Thank you, Jeremy, for the prayer. And now it's time for our quiz, which hopefully all of us have prepared. And so I hand over the time to Kenny, who will be conducting the quiz for us. And happy Sabbath to all. I hope you all have prepared for the quiz. Just a quick reminder that the quiz portion is from Leviticus chapter 7 to 9. And best of luck to all of you. Okay, so we are ready to start the game. I hope you all have read. All the best. The first question is when shall the trespass offering be killed? Oh sorry, where shall the trespass offering will be killed? The question is where shall the trespass offering be killed? Okay, the correct answer is in the place where the burnt offering was killed, and it is found in Leviticus chapter 7 verse 2. We have Indore leading, followed by Karan and Sammy, Stelz and Teddy. Move on to the next question. Who shall burn the offering? The elders of Israel, the priest, Aaron's sons, or Moses? Who shall burn the burnt offering? Who shall burn the offering? The correct answer is the priest, and it is found in Leviticus 7 verse 5. Okay, we still have Indore leading, followed by Karan, Sam and Kalicharan. We'll move on to the next question. Who shall eat the meat of the ram, which is the trespass offering? Every male amongst the people of Israel, every male among the elders of Israel, every male among the priests. Who shall eat the meat of the ram, which is the trespass offering? The correct answer is every male amongst the priests. That is found in Leviticus 7 verse 6. We have Indore followed by Karan and Sam and Stelz and Sammy. We'll move on to the next question. Where shall the meat of the ram, which is the trespass offering, be eaten? In the holy place, in the courtyard, at their homes, or the most holy place? Where shall the meat of the ram be eaten? The correct answer is in the holy place, and it is found in chapter 7, verse 9. Okay, we'll see the scoreboard. Now we have Karan, followed by Indore and Sam, followed by Stelz and Sammy. Move on to the next question. How is the meat of the offering offered? It's baked in the oven, dressed in the frying pan, baked in the oven, dressed in the frying pan, or baked in the frying pan, dressed in the oven. The correct answer is baked in the oven, dressed in the frying pan. And it is found in Leviticus chapter 7, verses 9. Okay, we'll see the scoreboard. Now we have Sammy climbing up. We have Karan, followed by Indore, Sammy, and Sam and Stelz. Move on to the next question, which is of double point. So answer it carefully. What should be offered with the peace offering? Is it unleavened cakes, unleavened wafers, all of the above, or none of the above? What should be offered with the peace offering? Okay, the correct answer is none of the above. Both should be anointed with oil. We'll see the scoreboard. Okay, we have the same scoreboard. Karan leading, followed by Indore, Sammy, and Sam and Stelz.
Um, when shall the flesh of the sacrifice of the peace offering be eaten? On the same day, after 2 days, after a day, or after 3 days? When shall the flesh of the sacrifice of the peace offering be eaten? The correct answer is on the same day, and it is found in chapter 7, verse 15. You see the scoreboard. Here we have Sammy climbing up. We have Karan leading, followed by Sammy and Indore, and Sam and Stells. We'll move on to the next question. True or false? This is also of double points. The remainder of the flesh of the sacrifice of the peace offering shall be burnt on the same day, on the second day. Is it true or false? The correct answer is false, and the remainder of the sacrifice shall be burnt on the third day. The leaderboard is Karan leading, followed by Sam, Sammy, Stells, and Indor. Move on to the next question. What did Moses do to Aaron and his sons? Anointed them with oil, washed them with water, washed them with milk, anointed them with fire. What did Moses do to Aaron's sons? Aaron and his sons. The correct answer is washed them with water, and it is found in verse 8, verse 6. The scoreboard is we have Karan followed by Sam and Indor, Kalicharan and Sammy. Move on to the next question, which is you have to select two answers. What did Moses sprinkle on the priest's clothes? Water, oil, blood, or flour? Yeah, what did Moses sprinkle on the priest's clothes? The correct answer is blood and oil, and it is found in chapter 8, verses 33. You see the scoreboard? We have Teddy climbing up, we have Karan leading, followed by Sammy and Indore. We have Teddy and Kalichan catching up. Move on to the next question. The ceremony for appointing the priest lasts how many days? 4, 2, 7, or 9 days? The ceremony for appointing priests lasts for how many days? The correct answer is 7 days, and it is found in Leviticus chapter 9, verse 1. The scoreboard remains the same. We'll move on to the next question, which is double points. What was offered for burnt offering? Ram without blemish, kid goat without blemish, two doves, calf without blemish. What was offered for burnt offering? The correct answer is ram without blemish, and it is found in Exodus chapter 9, verses 1. We'll see the scoreboard. Here we have Karan leading, followed by Sam and Indore, Teddy and Kalicharan following. We'll move on to the next question. On which day did Moses call Aaron and his sons and the elders of Israel? On the 8th day, 5th month, and 12th day, 8th month and 12th day, no, 8th month and 8th day, and 5th day. On which day did Moses call Aaron and his sons and the elders of Israel? The correct answer is 8th day, and it is found in Leviticus chapter 8, verses 2. And we'll see the scoreboard. We have Karan leading, followed by Sam and Indore and Kalicharan and Stells. Move on to the next question. What was offered for the sin offering? Young calf without blemish, young ram, young calf,
young ram without blemish. What was offered for the sin offering? Okay, the correct answer is young calf, and it is found in Leviticus chapter 9, verses 3. Here we still have Karan leading, followed by Sam and Indor, and Kalicharan and Stelz. We'll move on to the next question, which is of double points. What shall be offered for the peace offering? A bullock with a ram, a calf and a goat, a bullock and a kid goat, 4 doves and 2 turtle doves. What shall be offered for the peace offering? The correct answer is a bullock and a ram. And it is found in Leviticus chapter 9, verses 3. Okay, we have pretty much the same scoreboard, but we have Karan leading, followed by Indor and Sam and Kalicharan and John. We'll move on to the next question. True or false? Goat is offered as a sin offering. It is false. We we have Karan leading, followed by Indor and Sam and John and Kalicharan catching up. When did Aaron burn the meat offering beside the sacrifice? In the morning, at night, in the afternoon, or in the evening? The correct answer is in the morning. We'll see the scoreboard. We have Sam climbing up. We have Karan followed by Sam and Indor and John and Kalicharan. Move on to the next question, which is true and false. The fat of the meat of the meat offering was supposed to be eaten by the priest. False. It was not supposed to be eaten. It was supposed to be burnt in the fire. You see the scoreboard. Here we have Karan leading, followed by Sam and Indor, followed by John and Stelz. We'll move on to the next question. How was the burnt offering consumed? With fire, with water, with smoke, or by a cloud? Okay, many of us have got it correct. The correct answer is with fire, and it is found in Leviticus chapter 9, verses 24. We'll see the scoreboard. We have Karan leading, followed by Sam and Indor, and John and Stelz catching up. Okay, this is our last question, which is of double points. When did the glory of the Lord appear unto all the people? After Moses and Aaron blessed the people, after the people offered the sacrifice, after Aaron was anointed, after Moses burned the sacrifice. When did the glory of the Lord appear unto all the people? Okay, the correct answer is after Moses and Aaron blessed the people, and it is found in Leviticus 9, verses 23. In the third place, we have John, and in the second place, we have Sam, and in the first place, we have Karan. Okay, thank you all for participating in the quiz. Congratulations once again to the winners. Thank you, Kenny, for conducting the quiz so well. I know it was difficult and confusing, but you did it really well.
And now we'll have a special song by Uncle and Auntie Hemrom. जीवन का मेरे तू रखवाला है, तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला है, तू मेरा विधाता है। जीवन की कश्ती हस्ती भंवर में तू ही तो केवल सहारा है। जीवन की कश्ती हस्ती भंवर में तू ही तो केवल सहारा है। जीवन का मेरे तू रखवाला है, तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला है, तू मेरा विधाता है। जीवन जब होगा चाहत होती प्राण। जीवन जब होगा चाहत होती प्राण। होकर जमती है आहें निकलती है। होकर जमती है आहें निकलती है। तेरे सहारे होती है राहें वीरान। तेरे सहारे होती है राहें वीरान। जीवन का मेरे तू रखवाला है, तू मेरा विधाता है। जीवन का मेरे तू रखवाला है, तू मेरा विधाता है। जीवन है एक नगमा जिसकी हदन है उदास। जीवन है एक नगमा जिसकी हदन है उदास। राहों में है तूफान, पावन बुझता प्रकाश। राहों में है तूफान, पावन बुझता प्रकाश। मेरे खुदाई सफर होने
Thank you, Uncle and Auntie, and Shania for the beautiful song. It was so wonderful to see all of you singing, and the music also was really good. Now it's time for the message, and the message will be brought to us by Pastor Sanatan Kisku, and I hand over the time to him now. मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि हम लोग को परमेश्वर ऐसा अगुवाई कर रहा है जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, उसको पहचान सकते हैं, और पहचानने के लिए हम लोग को शक्ति दिया है। परमेश्वर हम लोग को सृष्टि किया और हम लोग को किस प्रकार से चलना चाहिए उस दुनिया में उसको अगुवाई किया है। हम लोग को आज्ञाकारिता का प्रतिफल क्या है उसको हम लोग देखेंगे भजन संहिता 19:11 में। यहाँ कहता है हर एक लोगों के लिए कि और उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। ये प्रतिफल क्या चीज है? इस चीज को हम लोग परमेश्वर हम लोग को प्रतिफल देने चाहता है, उसको हम पहचान लें। लेकिन हम लोग को प्रतिफल क्यों देगा? प्रतिफल देने के लिए हम लोग को क्या क्या करना चाहिए? प्रतिफल पाने के लिए, प्रतिफल लेने के लिए, प्रतिफल क्या चीज है? प्रतिफल, और इस प्रतिफल परमेश्वर हम लोग को देने चाहता है। हम लोग यदि देखेंगे कि उस हम लोग को प्रतिफल पाने के लिए अपना हुक्म दे दिया है, हम लोग को 10 आज्ञा दे दिया है, और 10 आज्ञा जो व्यवस्था का में के रूप में भी देखते हैं। और यहाँ कहता है यहोवा की व्यवस्था खरी है। 7 पद में पाते हैं भजन संहिता को 19:7 में, जो कि हम लोग को कहता है कि व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए एक अच्छा नियम बना दिया है, कानून बना दिया है कि हम लोग किस प्रकार से अच्छा जीवन बिताएंगे। हम लोग 7 पद में हम लोग पढ़ लिए कि यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। हमारे जीवन में जो अफसोस है, हमारे जीवन में हो सकता है दुख का तकलीफ है, हमारे जीवन में बहुत प्रकार का कष्ट होता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके जीवन में उसके साथ में रह करके आनंद जीवन पाए, अनंत जीवन पाए, आनंद भी पाए और अनंत जीवन भी पाए। यहाँ कहता है कि हम लोग किस प्रकार से, जब हम लोग को अगुवाई करता है तो हम लोग को क्या क्या करना चाहिए। तो यहाँ यहोवा के नियम विश्वास योग्य है, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। हम लोग बहुत ही साधारण लोग हैं, जो कि कोई समय हम लोग नहीं जानते हैं कि क्या करना है, लेकिन हम लोग को ईश्वर हम लोग को अपना रास्ता में लाने के लिए हम लोग को क्या करता है? नियम दे दिया है, और उसी के अनुसार हम लोग को 10 आज्ञा दे दिया है। 10 आज्ञा में हम लोग देखते हैं कि बहुत ही अच्छी नियम है, जो कि हम लोग को 10 आज्ञा बोलते हैं। लेकिन वही 10 आज्ञा ही में हम लोग कोई समय चूक जाते हैं, लेकिन इसको समझ नहीं सकते हैं कि ये 10 आज्ञा परमेश्वर हम लोग को क्यों दिया। 10 आज्ञा और भी बहुत सा व्यवस्था दिया है, नियम सब, कानून सब दे दिया है, उसको क्यों पालन करें? हम लोग को पालन करने के लिए क्यों ईश्वर हम लोग को चाहता है कि उसके नियम के अनुसार चले, उसके व्यवस्था को माने, उसके और जो कोई 10 आज्ञा है उसको माने, क्योंकि हाँ परमेश्वर हम लोग को प्यार करता है और अपना राज में ले जाने के लिए चाहता है। और इसलिए यदि हम लोग भजन संहिता का 19 पूरा पढ़ेंगे, तो यदि हम लोग वहां देखते हैं कि हम लोग को किस प्रकार से हम लोग को उसका नियम पालन करने से हम लोग को क्या क्या मिलता है। क्योंकि हम लोग को यहाँ कहता है कि जब हम लोग उसके आज्ञाओं को मानते हैं तो परमेश्वर सुरक्षा देने वाला है, हम लोग को सुरक्षा देता है, सुरक्षा देता है। हम लोग कोई समय हम लोग गलती रास्ता में जाते हैं,
और उस समय हम लोग गलत कदम बढ़ाते हुए हम लोग खाई में गिरने लायक हो जाते हैं, पाप में गिरने लायक होते हैं, लेकिन उससे भी बचाता है। इसलिए हम लोग को कई चीज जो कि हम लोग को कहता है कि हम उसके आज्ञाओं को माने, उसके हुक्म को माने, उसकी इच्छा पर चले, और इस प्रकार से हम लोग को उसका पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। क्या क्या प्रतिफल मिलता है उसको हम थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि मेरा समय तो बहुत ही छोटा है, लेकिन बहुत ही बड़ा समय ले सकता है ये। चलिए देखेंगे हम लोग को, हम लोग प्रोवर्ब्स 3:1 और 2 हम लोग पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स ये नीति वचन का 3 अध्याय का 1 और 2। नीति वचन का 3:1-2 में कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरे आज्ञाओं को रखे रहना। मैं अपने हृदय में रखने बोलता, क्यों? क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हम लोग को क्या कैसे जिंदगी बिताना है, हम लोग को किस प्रकार से अपना जिंदगी हम लोग बिताएंगे, अपने लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने मित्र लोगों के लिए, अपने प्रेमी लोगों के लिए। यहाँ कहता है कि क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हम लोग कोई समय हम लोग उस आज्ञा जो परमेश्वर दिया है उसको हम लोग तोड़ देते हैं, बहुत प्रकार से तोड़ते हैं। 10 आज्ञा में बहुत सच ऐसे आज्ञा है जिसको हम लोग साधारणता से हम लोग तोड़ते हैं, और हम लोग का जीवन में कोई समय बर्बाद हो जाता है। मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर का ना मानना। परमेश्वर जानता है कि अब हम लोग दुनिया में है तो हमारे बहुत सा परीक्षाएं हैं जो कि हम लोग भूल जाते हैं कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर को नहीं भूलना है, उसका नाम को व्यर्थ नहीं लेना है। और हम लोग इस प्रकार से जानते हैं कि परमेश्वर अपने हुक्म हम लोग को दिया है कि उसके सामने में और कोई दूसरा चीज ना हो। हम लोग दूसरा चीज को हम लोग सोचते हैं मूर्ति नहीं, और कुछ दूसरा चीज भी हम लोग का एक मूर्ति के रूप में धारण कर सकता है। और ऐसे करने से तेरी आयु बढ़ेगी। हम लोग का आयु बढ़ाना है तो यहाँ कहता है और तो कुशल से रहेगा। तो इस प्रकार से हम लोग का यहाँ किस प्रकार से हम लोग का परमेश्वर हम लोग को अगुवाई करता है। और जब हम उसके आज्ञाओं को मानेंगे तो क्या मिलेगा, हम लोग चलिए देखेंगे। एक्लेसियास्टिक 8:5, एक्लेसियास्टिक हिंदी में बोलते हैं सभा उपदेशक। सभा उपदेशक का 8:5 में हम थोड़ा खोलने में देरी करते हैं, लेकिन 8:5 में यहाँ लिखता है, 8:5 में बोलता है, जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा। जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा, और बुद्धिमान का मन समय और समय का भेद जानता है। जो आज्ञा को मानता है वह जोखिम से बचेगा। जोखिम हमारे जीवन में बहुत प्रकार के जोखिम से आता है। हम लोग कोई समय हम लोग गलती कर देते हैं कि हम लोग किस जगह जा रहे हैं, सही जगह जा रहे हैं, सही चीज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं अपना जीवन में, जो कि हम लोग को हो सकता है हम लोग को जोखिम सामना करना पड़ेगा। और जोखिम हम लोग का ऐसा चीज है कि हम लोग को सुरक्षा देने वाला कौन है, यदि हम उसके आज्ञाओं को मानेंगे, उसको हुकुम को मानेंगे। रोमी 8:28 में यदि हम लोग देखेंगे, इसी प्रकार का एक बात है जो कि हम लोग कोई कुछ समय हम लोग भूल जाते हैं कि ईश्वर हम लोग को क्या क्या वचन में दिया है। रोमी का 8:28 में यदि आप पढ़ेगा तो वही सी प्रकार का चीज जो हम लोग को दिया है। हम जल्दी से खोल नहीं सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हम लोग को दिया है समय, इसके अनुसार हम लोग यहाँ कहता है। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा के अनुसार
बुलाए हुए हैं उसकी इच्छा के अनुसार। कोई कुछ हम लोग उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हैं लेकिन काम नहीं करते। उसकी इच्छा के अनुसार हम लोग बुलाए हुए हैं, उसके हुक्म नहीं मानते, उसकी आज्ञा को नहीं मानते, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं और अपनी इच्छा पर हम लोग कोई कुछ में क्या करते हैं, गलत काम कर लेते हैं और जिससे परमेश्वर दुखित होता है और हम लोग बहुत बड़ा दुख को सामना करना पड़ता है। हमारा परमेश्वर इतना दयालु है कि हम लोग इतना दुख में भी रहें, कितना तकलीफ में भी रहें, बीमार में रहें, हमारे प्रियजन सबको हम लोग कोई कुछ में खो देते हैं, लेकिन परमेश्वर हम लोग को कभी नहीं भूलता है। आप हम लोग देखेंगे भजन संहिता के 119 का 145 119 का 145 में लिखा है, मैंने सारे मन से प्रार्थना की है कि हे यहोवा मेरे सुन लेना, मैं तेरे विधियों को पकड़े रहूंगा। कोई कुछ में हम लोग भूल जाते हैं उसके विधि क्या चीज है, व्यवस्था है। व्यवस्था क्या चीज है? 10 आज्ञा है। 10 आज्ञा क्या है? परमेश्वर का हुक्म है। परमेश्वर एक रास्ता दिखाया है और इस रास्ता में चलने के लिए हम लोग को क्या करता है, यहाँ पर सब विधि हम लोग पकड़े रहना है ताकि सारे मन से हम लोग परमेश्वर को हम लोग मानते हैं। और इसी प्रकार से हमारा जीवन में हम लोग कोई कुछ में बहुत तकलीफ होता है जिसमें शांति नहीं मिलती है। यशायाह के 26 का 3 में यशायाह 26 का 3 में हम लोग यहाँ पाते हैं, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यह है हम लोग का प्रतिफल यही है। परमेश्वर हम लोग उसके आज्ञाओं को मानने से क्या होता है, हम लोग क्योंकि हम लोग धीरज धरे हुए हैं और उसके तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। परमेश्वर हमारा रक्षा करता है, परीक्षाओं से रक्षा करता है, गिरने से रक्षा करता है और गलत रास्ता जाने से भी रक्षा करता है, क्योंकि हम यहोवा का संतान। यहाँ कहता है 4 पद में, यहोवा पूरा सदा भरोसा रख, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। मेरा नाम भी सनातन है, लेकिन ये है सनातन चट्टान। परमेश्वर हम लोग को क्या किया है, दिया है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से उसका हम लोग निश्चय है कि हम लोग उद्धार पाएंगे, निश्चय है कि हम लोग उद्धार पाएंगे। तो हम लोग को क्या करना है, समय समय पर हम लोग को प्रार्थना करना है, कारण हम लोग को उस परमेश्वर का आज्ञाओं को मानना है। परमेश्वर हम लोग को देखेगा और हमारा हर चीज सुनेगा, क्योंकि प्रार्थना को उत्तर देता है। हम लोग यहाँ पर कई जगह में हम लोग देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हम लोग को अगुवाई करते आया है। हम लोग भजन संहिता का 112 का 7 में देखेंगे, 112 का 1 में भी देखेंगे, और हम लोग को परमेश्वर हम लोग को अगुवाई करता है। उसका निश्चय हम लोग प्रमाण पाते हैं कि परमेश्वर हम लोग को कभी नहीं छोड़ेगा। हम लोग को परमेश्वर अपने उसके हुक्म को मानते जाएंगे और हम लोग उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो परमेश्वर हम लोग को कभी नहीं छोड़ेगा और परमेश्वर हम लोग को कभी नहीं त्यागेगा। हम लोग कहीं भी जाएं, जो कुछ भी करें, उसका महिमा करेंगे। यहाँ कहता है, यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। कितना ही यहाँ सुंदर वचन है जो कि हम लोग कोई उसमें भूल जाते हैं कि क्या ही धन्य है वह पुरुष। पुरुष लिखा है, लेकिन हर एक आदमी है उसमें, हर एक आदमी जो यहोवा का भय मानता है उसके आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है और परमेश्वर उसको आशीष देगा। हम लोग कई चीज में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर हम लोग को कभी नहीं छोड़ेगा। मत्ती 28 का 20 में देखें, मत्ती 28 का 20 में, खोलने में मेरा देरी होता है, लेकिन परमेश्वर हम लोग को मौका दिया है कि हम लोग किस प्रकार से यहाँ पर हम लोग
उस वचन को हम लोग पढ़ें। परमेश्वर हम लोग को अगुवाई करे। 28 का 20 में कहता है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। परमेश्वर हम लोग को कभी नहीं छोड़ेगा। उसके हुक्म को मानेंगे, उसके आज्ञाओं को मानेंगे, उसका प्रतिफल क्या है? परमेश्वर हम लोग के साथ में हर समय है, सदा तुम्हारे साथ रहूंगा बोलता है, तुम्हारा संग हूं। और अंत तक हम लोग को परमेश्वर के साथ, हम लोग के साथ में कितना अच्छा है कि हम लोग परमेश्वर हम लोग को अगुवाई किया है। और एक हम लोग देखेंगे लास्ट में नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर हम लोग को कभी नहीं छोड़ेगा। इब्रानी 13 का 5 हम लोग पढ़ लेते हैं और अंत करेंगे। इब्रानी का 13 का 5 यहाँ क्या कहता है कि परमेश्वर हम लोग को कभी नहीं छोड़ेगा। और इस प्रकार से हम लोग को यहाँ कहता है कि हम पढ़ने चाहते हैं। यहाँ कहता है, हम परमेश्वर के साथ बोलता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि हमने आपको कहा है कि मैं कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर हम लोग को कभी नहीं छोड़ेगा। यदि हम उसके आज्ञाओं को मानेंगे तो हम लोग को कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। और इस प्रकार से परमेश्वर अपने हुकुम को मानने के लिए हम लोग को आग्रह करता है, प्यार करता है, क्योंकि हम लोग को प्यार करता है। जो कोई उसको प्यार करता है उसके आज्ञाओं को मानेगा और उसको परमेश्वर आशीष देगा। यहाँ पर हम लोग कई चीज में हम लोग देख लिए कि यहोवा के उपदेश सिद्ध है और हृदय को आनंदित कर देता है। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय पवित्र है और अनंत काल तक स्थिर रहता है। हम लोग यहाँ पढ़े, यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से आश्चर्य में धर्ममय है। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। और उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उसके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। हम लोग इस प्रतिफल के लिए हम लोग प्रार्थना करते रहें और प्रतिफल मिलने के लिए आशा कर रहे हैं, वो जरूर मिलेगा। ईश्वर हम लोग को आशीष देवे। हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं, हम लोग सिर झुकाएंगे। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर मौका के लिए कि हम इस सुंदर वचन को जो तूने ठहराया है कि हम क्या प्रतिफल पाएंगे कि हम यदि आज्ञा मानते रहेंगे, अंत में हमें क्या मिलेगा। तूने हमें बहुत प्रकार का संतोष से वचन दिया है कि तू बिन त्यागेगा और तू हमारे साथ ही रहेगा। ईश्वर परमेश्वर दयालु हमें आशीष दे ताकि हम तुझको न भूलें और तेरे आज्ञाओं को मानते हुए तेरे राज्य तक पहुंचने लायक। हर एक को सुनने वालों के साथ तो हर एक को तो इस आशीर्वाद दे ताकि तुझको मानते रहें, तेरे आज्ञाओं को मानते रहें, तेरी इच्छा के अनुसार पूरा करते रहें, और अंत में तो अपने राज्य में सब कुछ सब तो वहां पहुंचाएगा, ले जाएगा और तेरे राज्य में हम वास करेंगे। इस छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगा देकर सुन और ग्रहण करते हैं। आमीन। Thank you, Uncle Kisku, for your message about God's law, the 10 commandments, and the blessings that we get when we follow God's law. Thank you once again. And we have another special song which will be brought to us by Akansha and Anushka. Hello everyone, happy Sabbath. I hope you all are doing great. And I will be singing the song for Mighty to Save, and that is from Hillsong. I am a little bad at lyrics, so I'm just gonna take a look. Well, everyone needs compassion,
a love that's never failing. The mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, all my fears and failures, and fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Now I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Thank you so much. Thank you for your lovely song, and it was good singing. And now we have the closing prayer, which will be offered by Mr. Pradeep Tete. हम लोग प्रार्थना करें। सृष्टि करने वाला प्रभु, इस घड़ी के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम सबों को तो इस योग्य बनाया कि हम तेरी महिमा और तेरी स्तुति में हो पाए, और तुम्हें इस योग्य कि हम पूरे 6 दिन तेरी आराधना स्तुति के प्रतीक्षा में हम जब यहाँ रहते हैं, क्या ही आनंदित और खुशी के साथ में गीतों को गाए और वचन सुन सकते हैं। साथ ही बाइबल क्विज न सुंदर तेरी योजना के बाद हम सारे इन बातों को अपने मन हृदय में पढ़ करके और तेरी और अधिक आने के लिए हम आकर्षित हो सकते हैं। पिता, इन सब योजना के लिए हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं न सुंदर वचन जो हमारे लिए अंकल, जो हमें सनातन अंकल ने, पास्टर सनातन किसको जो हमारे बीच पेश किए, उनके साथ था, उनको तो अगुवाई किया, उन्हें तो हर एक बातों में तेरे आशीष और तेरे वचन को हम जान सकते हैं। हर एक के मन हृदय में अपने मन हृदय में रख सके और तेरे पथ पे हम चलने के योग्य होने पाए। हम हर कदम में, हर पल हम पाप गुनाह में जीवन व्यतीत करते हैं और डर में जीवन व्यतीत करते हैं कि इस महामारी, इस पाप में जगत में हम जब जीते हैं, हर एक को, जितने हम सब यहाँ जुड़े हैं हमारे इस परिवार के द्वारा, तो हमें मदद करके हम सब तेरे आराधना में, स्तुति में बने रहे। फिर जिस प्रकार से आगे के 6 दिन हम तेरे आपको फिर से तैयार करके आज का दिन को हम फिर से स्मरण कर सके। आज पवित्र दिन के आशीष तो हर एक को दिया कर, जो नहीं आ सके, जो जुड़े नहीं पिता, उन्हें भी तो भला चंगा रख, और जो बीमार और तकलीफ में हैं उनको तेरे हाथ में सौंपते हैं, विशेष करके उन्हें भी तो आशीष दे, और दूर जगह में जहाँ कहीं भी है तेरी आराधना स्तुति में वे लोग भी पाए जाए। और प्रार्थना करते हैं हर एक छोटे बड़े जितने हम सब तेरे सामने आते हैं, मदद करके हम तेरे इच्छा के अनुसार चलने वाले हों। हम प्रार्थना करते हैं जितने हमारे बुजुर्ग इस ग्रुप में जितने जुड़ते हैं और हम देख सकते हैं आनंदित और खुशी के साथ, उनको तेरे हाथ में सौंपते हैं, उनके संग भी तो हो। और यहाँ से लेकर के दूर विदेशों तक हमारे जितने भी परिवार के सदस्य हैं जिनको हम नाम नहीं ले सकते हैं पिता, उनके भी संग तो हुआ कर। आशीष दे हर एक
बोली वचन, हर एक चाल चलन, हर एक व्यवहार में हम तेरी महिमा को प्रकट करने वाले हो। जिस दिन तो आएगा और उस दिन का देखने वाले हो सके। बाकी जीवन तेरे हाथ में सौंपते हैं। तेरी आराधना स्तुति में हम सब पाए जाए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से सुन और ध्यान कर। आमीन।